إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما آمین. اللہم رب زدنی علما آمین. تمام قسموں کی تعریف، کبریائی، بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. ہم سب اسی کے بندے، اسی کے محتاج ہیں. وہ ہمارا رب ہے. ہم سب کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کی بات ماننی چاہیے، اسی کے قانون کو فالو کرنا چاہیے. تعریف والا ہے وہ رب جس نے ہمارے اندر سے اپنے نیک بندوں کو نبی بنایا، رسول بنایا، اور آخر میں رسول عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا. اور قرآن مقدس کے اندر یہ بشارت دے دی، خوشخبری سنا دی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. درود اور سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، خاص طور سے اللہ کے آخری نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سامعین، آج کے اس جمعہ کے خطبے کے اندر کچھ نصیحتیں لے کے حاضر ہوا ہوں. وہ نصیحتیں، وہ پیاری باتیں جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع موقع سے صحابہ کرام کو بیان فرمائی تھی، صحابہ کے سامنے رکھی تھی. موقع، وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی یہ کوشش کی کہ کیوں نہ ان نصیحتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کو سن کر، رسول عربی کی حدیثوں کو سن کر، روزمرہ کی زندگی کے اندر آپ ان حدیثوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو سنت کا تابع اور اللہ رب العالمین کا فرما بردار بنا سکے. یوں تو یہ سماج، یہ معاشرہ جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کی حالت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. حالت دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے ایک بہت بڑے ذمہ دار ہم سب بھی ہیں. کیونکہ اسلامی تعلیم جو سب سے بہتر تعلیم تھی، اسلامی قانون جو دنیا کا سب سے بہتر قانون تھا، جس نے ہر ایک کو اس کا حق عطا کیا. کوئی آدمی پڑھا لکھا سمجھدار انسان ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسلام نے ہم پہ زیادتی کی ہے، اسلام نے ہمارے ساتھ میں ناانصافی کی ہے. بلکہ اوپر سے لے کے نیچے تک، نیچے سے لے کے اوپر تک، چرند ہو، پرند ہو، چیونٹی ہو، جانور ہو، انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، اللہ کے حقوق کا مسئلہ ہو، کتابوں کا مسئلہ ہو، فرشتوں کا مسئلہ ہو، ہر ایک کو اسلام نے اس کے حقوق عطا کیے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیم کو چھوڑ کر، اسلامی قانون کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگ کے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہم نے اسلام کی صورت کو بگاڑ دیا. لوگوں نے اسی کو اسلام سمجھا جو مسلمانوں نے کر کے دکھایا، اور اسلام کی اصلی صورت ان کے سامنے یہ آئی کہ مسلمان جو کر رہا ہے وہی اسلام ہے. آج آپ دیکھ لیں، ایک زمانے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے داڑھی والے،
जिन्हें दीन का पता नहीं, इस्लाम का पता नहीं, जिन्हें अल्लाह का पता नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया को क्यों पैदा किया, कुरान क्या है, कुरान कैसी किताब है, ये कानून क्या सिखाता है, जिन्हें ये नहीं पता, वो सिर्फ चंद पैसों की खातिर, चंद सिक्कों की खातिर सोशल मीडिया पर इस्लाम को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। वो ये भूल गए कि जब जब ऐसे लोग दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून के साथ में नाइंसाफी करते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़ाब कब कहां से आके उनको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, उन्हें एहसास भी नहीं होता। बेशुमार दुनिया के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि लोगों ने इस्लामी सूरत को बिगाड़ने की कोशिश की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुस्ताखी करने की कोशिश की, इस्लाम के चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की। अल्लाह का अज़ाब आया और उस आदमी को इबरत और नसीहत बना के चला गया। बेशुमार मिसालें ऐसी मौजूद हैं। तो हमारा ये समाज, ये मुआशरा इस वक्त गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ है। इसके बावजूद हमें एहसास नहीं है, हमें जरा भी फिक्र नहीं है। तो ये तमहीदी बातें मैंने आपके सामने इसलिए बयान की कि समाज और मुआशरा इस वक्त गुनाहों के ऐसे दलदल में फंस चुका है, ना आपको फिक्र है, ना किसी को फिक्र है, हर एक को अपनी फिक्र है सिर्फ, बस वो भी दुनियावी पैमाने पर, दीनी पैमाने पर नहीं। दीन हाथों से छूट रहा है, छूट जाए कोई परवाह नहीं है। बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। घर का माहौल बद से बदतर होता जा रहा है, कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। हमारी सारी खूबियां, सारी क्वालिटी गैरों के पास चली गई, कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। गैरों की तमाम बुराइयां हमारे अंदर आ गई, कोई परवाह नहीं। ये मुसलमान ऐसा हो चुका है। जबकि होना क्या चाहिए था, इस्लाम की सही सूरत, सही तस्वीर हमारे सामने होनी चाहिए थी, और हमारा ओढ़ना, हमारा चलना फिरना, खाना पीना, ये इस्लाम की तस्वीर होनी चाहिए थी। हमने उस तस्वीर को खत्म कर दिया। आज जुमा का दिन है, रसूल अरबी का क्या हुक्म है जुमा के ताल्लुक से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अरबी का नाम आए तो जरूर भेजना चाहिए। प्यारे नबी ने क्या फरमाया, मन नसिया अस्सलात अलैया, जो मुझ पर दरूद पढ़ना भूल गया, खतिया तरीक़न जन्नत, वो जन्नत के रास्ते से भटक गया। इतनी वाज़ेह हदीस होने के बाद भी अगर एक मुसलमान अल्लाह के रसूल का नाम आने के बाद दरूद ना पढ़े, तो समझ लीजिए कि जन्नत का जो रास्ता था वो आपसे बहक गया। आप बहक गए, उस रास्ते से भटक गए, आप दूसरे रास्ते पे जा पहुंचे, इतनी सी गलती की बुनियाद पर। तो आज जुमा का दिन है, सबसे अफजल, सबसे बेहतर दिन है। मुसलमानों को ये मालूम है कि जुमा के दिन मस्जिद में जल्दी आना चाहिए। फरिश्ते इमाम का खुतबा सुनना चाहते हैं, फरिश्ते इमाम का खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन मुसलमान जिसे खुतबे का खुसूसी हुक्म दिया गया है, वो खुतबा सुनने को तैयार नहीं। सही बुखारी, सही मुस्लिम को पढ़ेंगे तो मालूम ये होगा कि जितने दरवाजे मस्जिद के होते हैं, हर दरवाजे पे फरिश्ते मुतय्यन होते हैं, रजिस्टर उनके हाथ में होते हैं। जैसे मुअज्जिन या अजान देने वाला अजान पुकारता है, फरिश्ते रजिस्टर बंद करके मस्जिद में आके बैठ जाते हैं। और ये बात बाकायदा हर जुमे को इशारा दिया जाता है कि मस्जिद में जल्दी आना चाहिए, तमाम काम काज खत्म करके। लेकिन मुसलमानों को जरा भी एहसास, जरा भी फिक्र नहीं है कि अपनी इस्लाह की कोशिश करें, अपने आप को बनाने की कोशिश करें। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अफ़ज़लुल अय्याम इंदल्लाहि यौमुल जुमुआ, अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल, सबसे बेहतर दिन जुमा का दिन है। आज वही दिन है जुमा का, और मुसलमान इसकी अहमियत को, इसके मकाम को, इसके मर्तबे को समझने को तैयार नहीं है। सही अंजाम हदीस नंबर 1098। तो मालूम यह हुआ कि तमाम 7 दिनों के अंदर सबसे अफजल, सबसे बेहतर जो दिन है वो जुमा का दिन है। इसलिए मुसलमानों को इसके कदर को, इसके मकाम को समझना चाहिए। एक दूसरी चीज, जुमा का दिन जब आता है और जुमा के दिन नमाज फजर जो होती है, अभी आपको इसकी फजीलत का अंदाजा नहीं है। हो सकता है शायद आपने हदीस ना भी सुनी हो, पहली मर्तबा हदीस आपके सामने आ रही हो, या हो सकता है कि आपने आपसे पहले सुनी हो लेकिन आपको याद न रही हो, आपके जहन से निकल गई हो। हदीस सुनिए, रसूल अरबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफज़लुस सलावात इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल, सबसे बेहतर नमाज, सलातुस सुबह यौमुल जुमुआ फी जमाअतिन, जुमा के दिन फजर की नमाज जमात के साथ जो पढ़ी जाए, सबसे बेहतर नमाज है वो।
उससे बेहतर कोई नमाज नहीं। अब कितने लोग फजर की नमाज जुमा के दिन पढ़ रहे हैं। अगर आम तौर पे एक तवज्जो दी जाए तो समझ में ये बात आ सकती है हमारे कि जुमा के दिन आम तौर पे जब जुमा का दिन आता है, जुमेरात उससे पहले होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुसूसी हुक्म है शादीशुदाओं को, नौजवानों को जो शादीशुदा है, कि जुमेरात के दिन अपनी बीवी के पास जाएं वो, और अपनी बीवी के पास जाने के बाद जुमा के दिन सुबह गुस्ल करें और गुस्ल करके जमात में शामिल हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने के अंदर भी अगर अपनी किसी बीवी से सोहबत करते थे और सहरी का वक्त हो जाया करता था, सहरी खाते थे पहले, उसके बाद गुस्ल करते फिर फजर की नमाज पढ़ा करते थे। तो अल्लाह के नबी ने जिंदगी का पूरा उसूल सिस्टम हमें बता दिया। हम उस सिस्टम को अपनाने को तैयार नहीं है, नहीं अपनाना चाहते, नहीं मानना चाहते उसको। अब जो हदीस मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा अपने दिलो दिमाग को हाजिर करके सुनिएगा और जाके बताइएगा अपने घर वालों को भी कि हदीसों के अंदर ऐसी हदीसें भी मौजूद है कि नबी अकरम हमारे लिए आपके लिए कितनी कितनी बड़ी बशारतें देके चले गए जुमा के दिन के ताल्लुक से। लेकिन मुसलमान सोया हुआ है, जागने को तैयार नहीं है। गैर है जो सोए हुए थे जाग चुके हैं और न जाने कितनी कितनी प्लानिंग करके अपने आप को कामयाबी के रास्ते पे ले जा रहे हैं वो, और हम कुछ करने को तैयार नहीं है। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, देखिए हजरत औस इब्ने औस कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझसे फरमाया, क्या फरमाया, वो हदीस के अल्फाज सुने, मन इग़तसला यौमल जुमुआ, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, वग़स्सना यानी इमरातन, और अपनी बीवी को गुस्ल कराया, यौमल जुमुआ, जुमा के दिन। जाहिर सी बात है जब दोनों मियाँ बीवी मिले होंगे आपस में तभी गुस्ल करवाएंगे एक दूसरे को दोनों। तो जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, अपनी बीवी को गुस्ल कराया, प्यारे नबी ने फरमाया वबक्करा, जल्दी मस्जिद के अंदर पहुंचा, वबतकरा, और शुरू से आखिर तक इमाम का खुतबा सुना, वदना, इमाम के नजदीक आगे बैठा, वस्तमा, तवज्जो कान की इमाम की तरफ थी, व अनसता, निगाहें भी इमाम की तरफ थी। अब नबी अकरम ने क्या फरमाया, काननहु बिकुल्लि खुतवतिन यख्तूहा अजरु सनत सियामिहा व क़ियामिहा, सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है। तो प्यारे नबी ने फरमाया उस आदमी को एक साल के रोजों का सवाब, हर कदम पे एक साल की तहज्जुद का सवाब मिलता है जो इस चीज को फॉलो करता है, अपनाता है जुमा के दिन। अब अंदाजा कीजिए, जो आदमी जुमा के दिन गुस्ल कर रहा, अपनी बीवी को गुस्ल करवा रहा है, मस्जिद में जल्दी आ रहा है और इमाम का खुतबा शुरू से सुन रहा है, इमाम के नजदीक आके बैठ रहा है, इस्तिमा, कान की तवज्जो इमाम की तरफ, वो अनसता, निगाहें इमाम की तरफ, हर कदम के बदले एक साल के रोजों का सवाब, एक साल की तहज्जुद का सवाब उसको दिया जा रहा है। इतनी बड़ी फजीलत जिस जुमा के दिन की हो, मुसलमान उस जुमा के दिन की फजीलत से भी और अपना नाम रजिस्टर्ड में दर्ज करवाने से भी महरूम हो चुका है, महरूम होता जा रहा है। ये जुमा के दिन की फजीलत है। एक साल के रोजे मामूली चीज है। आदमी एक दिन का रोजा अल्लाह की रजा के लिए रखने, सही बुखारी किताब जिहाद हदीस नंबर 2840 पढ़े आप, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम की आग से 70 साल पीछे कर देता है। एक रोजे की इतनी बड़ी फजीलत, और यहाँ पूरे साल के रोजों का भी सवाब और तहज्जुद का भी सवाब, क़ियाम का भी सवाब, सिर्फ जुमा के दिन इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद। इसके बावजूद मुसलमान ना अपनाए, ना माने, तो बदनसीबी के सिवा कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। एक और रिवायत देखें इसी ताल्लुक से, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन खरज मिन बैतिही मुतत्तहिरन, जो आदमी अपने घर से निकला रवाना हुआ वजू की हालत में, इना सलातिन मक्तूबतिन, फर्ज नमाज को अदा करने के लिए। कहां से निकला? अपने घर से वजू बना के। मुसलमान कंजूस हो चुका है वजू बनाने में, घर से मस्जिद के अंदर ही आके वजू बनाएगा, जबकि होना तो ये चाहिए था कि घर से वजू बना के आओ। जब इतनी बड़ी फजीलत आपको दी जा रही है, आपको मिल रही है कि आप घर से वजू बना के आएंगे, तो फायदा क्या होगा आपका? देखिए, काननहु फअजरुहु कअजरिन हाजिन मुअतमिर, उसका सवाब इतना है जितना कि हज का इहराम बांधने वाले हाजी का सवाब है। घर से वजू बनाया, वजू बना के मस्जिद आया, कितना सवाब मिला? एक हाजी मक्का के अंदर है, हज का इहराम बांध रहा है, जितना सवाब उस हाजी को अल्लाह वहां दे रहा है, उतना सवाब तुम्हें यहाँ घर से वजू बना के मस्जिद में आने पे दिया जा रहा है। और फिर भी मुसलमान लेने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, अपनाने को तैयार नहीं।
आगे फरमाया वमन खराजा इना तस्बीह ज़ुहा, जब नमाज नहीं पढ़ता तो ये जो ऑप्शन आ रहा है ये कहां से पड़ेगा। और जो आदमी चाश्ती नमाज अदा करने के लिए आया या उसका इंतजार किया, इसको बर्दाश्त करता रहा चाश्ती नमाज के वक्त को, तो उसको एहराम बांधने, उम्रे का एहराम बांधने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। जितना एक आदमी उम्रे का एहराम बांधता है उसको इतना सवाब दिया जाएगा। आगे फरमाया वह सनात वाला इसके सनातिहा, और अगर एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करता है वो अपने घर पे चाहे कहीं पे भी हो, ना नगुन बैनहुमा, इस वक्त के बीच में फजर से लेके जोहर के बीच का जो वक्त है ये वक्फा है, ये इस बीच में कोई बेहुदा बात नहीं की उस बंदे ने, किताबुल इल्लियीन, उसका आमल नामा, उसकी नेकियां जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पे नेक इंसान, नेक लोग हैं, उनका जो दफ्तर है आसमानों के अंदर, वहां उसका नाम दर्ज होगा, उसकी नेकियां वहां पर लिखी जाएंगी। इतना बड़ा सवाब अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, दर्जा दिया हुआ है, फिर भी मुसलमान लेने को तैयार नहीं है। अबू दाऊद हदीस नंबर 558। तो ये तमाम की तमाम फजीलतें जुमा के दिन से जुमा के दिन मस्जिद में आने वालों के लिए है, लेकिन मुसलमान इन बातों पर तवज्जो देने को तैयार नहीं है। एक और रिवायत देखें इसी ताल्लुक से, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना, मन तवज़्ज़ा, जिसने वजू बनाया, फ़अस्बग़ल वज़ूअ, वजू अच्छी तरह से बनाया, अच्छी तरह यानी एक एक हिस्से को ऐसे धोया कि कोई भी हिस्सा उसका खुश्क सूखा बाकी नहीं रहा। सुम्मा मशा इला सलाति मक्तूबा, फिर वो मस्जिद की तरफ आया नमाज पढ़ने के लिए, फसल्लाहा मअल इमाम, इमाम के साथ में नमाज उसने अदा की, कोई सी भी नमाज हो जमात से पढ़ी, गुफ़िरा लहू ज़म्बहू, उसके तमाम के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अल्लाहु अकबर। सही तरगीब हदीस नंबर 299। तो मालूम क्या हुआ, जुमा के दिन आने का फायदा, एक साल के रोजों का सवाब, एक साल के क़याम तहज्जुद का सवाब, वजू बना के घर से आने का सवाब, हज का एहराम बांधने के बराबर, चाश पढ़ने का सवाब, उम्रे का एहराम बांधने वाले के बराबर, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करने का सवाब, बीच में कोई बेहुदा बात ना की हो, गलत बात ना की हो, आपके आमाल नामे, आपकी नेकियां नेक लोगों के दफ्तर में लिखी जाएंगी। इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ी फजीलत शरीयत आपको देने को तैयार है। बहुत मामूली सा काम है, बस मस्जिद में पहने आना है, अजान से पहले आके मस्जिद के अंदर बैठना है जुमा के दिन, ये सारी फजीलतें आपको इंशाअल्लाह हासिल हो जाएंगी। तो ये जुमा के ताल्लुक से ये चंद हदीसें थी। अब कुछ अल्लाह के रसूल के अक़वाल ज़रूरी मौजूदा वक्त के एतबार से, समाज के एतबार से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह फिर बात को ख़त्म करूँगा। इससे पहले इन अक़वाल को मैं आपके सामने रखूँ, अल्लाह के रसूल के जो बड़े प्यारे अक़वाल हैं, आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये दुनिया हलाकत के दहाने पे खड़ी हुई है, याद रखिए। इंसान कब दुनिया से रुखसत हो जाए, ये इमारतें, ये बिल्डिंगें कब जमीन पे ढह जाए, जमीनें कब फट जाए, कुछ नहीं पता। ये मौसम, ये हालात, ये वक्त, ये हादसा बता रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अजाब आने को तैयार है, अल्लाह की तरफ से मुसीबत खड़ी हुई है, लेकिन लोग रुकने को भी तैयार हैं। अल्लाह से मांगो तो। अभी आप देखें जापान की सूरत हाल क्या है, आपने सुना होगा। रूस की सूरत हाल क्या है, ऐसे ऐसे भूकंप, ज़लज़ले वहां पर आए हैं कि 8.8 तक, इतना जबरदस्त भूकंप, ज़लज़ला। ये तबाही की पहचान होती है, तबाही की निशानी होती है। बल्कि बाकायदा मैसेज भी आए गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कि कल 1 अगस्त को दिल्ली के अंदर भी, राजधानी के अंदर भी, आसपास के अंदर सख्त झटकों के आने के इम्कानात हैं। आ सकता है 1 अगस्त के दिन। आज क्या है, 1 अगस्त है आज। ये अलर्ट दिया गया है कि लोग होशियार रहें। इसके बावजूद कितने लोग होशियार हैं, इसको फिक्र है। जापान में तो आया, हमें क्या परवाह। रूस के अंदर तो आया, हमें क्या मतलब। स्पीड इतनी तेज होती है, कब वो वहां से आपके कदमों के नीचे से होता हुआ, तबाह करता हुआ आपको निकल जाए, आपको एहसास भी नहीं होगा। ये क़यामत की निशानी है। वह तस्सिरुज़्ज़लाज़िल, प्यारे नबी ने फरमाया था, ज़लज़ले कसरत से आएंगे क़यामत के नजदीक।
पहले तो कभी कभी सुनने में आता था, अब तो साल में कई मरतबा ये रिपीट हो जाते हैं, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद। और ये बरसात के मौसम जो होते हैं, इन मौसमों के अंदर इनके आने के इम्कान ज्यादा होते हैं, क्योंकि हवाएं, आंधी तूफान, जो हवाएं चलती है, जो बारिशें होती है हवाओं के साथ में, तो इन मौसम के अंदर इनके आने के इम्कान और ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए अल्लाह के अज़ाबों से डरिए, डर जाइए, अपने दिलों के अंदर अल्लाह का तकवा पैदा करने की कोशिश कीजिए, और अपने आप को इन आफात से, इन मुसीबत से बचाने के लिए वो दुआएं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के चले गए, किताबों के अंदर महफूज है, कुरान मजीद के अंदर महफूज है, उनसे अपना कॉन्टेक्ट बनाइए, अपना राब्ता बनाइए उनसे, अगर कामयाब होना चाहते हैं। पहली हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल ज़गी के ताल्लुक से, आपने सुना होगा, देखा भी होगा सोशल मीडिया पर, अक़वाल ज़गी के नाम से लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें आपके सामने पेश करते हैं कि हजरत अली ने फरमाया, फला साहब ने फरमाया, फला ने फरमाया। वही अक़वाल ज़गी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ। जुमा के ताल्लुक से बात खत्म हो गई, अब कुछ आपसी बातें, आपसी इत्तेफाक की बातें, आपसी घरों की बातें, इंशाअल्लाह बड़ी प्यारी बातें हैं। आमतौर पे घर के अंदर कुछ काम ऐसे हैं जो रोजाना अंजाम दिए जाते हैं। सबसे पहला जो काम है उसके अंदर वो है खाने पीने का मसला। हमारे घरों की हालतें खाने पीने के ताल्लुक से बड़ी अजीब हो चुकी हैं। गैरों के नक्शे कदम पे चलते हुए इंसान को इतनी परवाह, इतनी फिक्र नहीं रही कि हमें खाना खाने का सिस्टम क्या अपनाना चाहिए, हमें खाना कैसे खाना चाहिए, हमारे खानों के अंदर बरकतें कैसे पैदा होंगी, हमारे ये खाने हमारे लिए फायदेमंद कैसे साबित होंगे। रोजाना खा रहा है आदमी, कोई उसूल नहीं, कोई कानून नहीं, अपना मनमाना कानून। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज्तमऊ अला तामिकुम, अपने खाने पे इकट्ठे होके आया करो, वज़कुरुस्मल्लाह, अल्लाह का नाम उस खाने पे लिया करो, युबारकनकुम फीहे, तुम्हारे लिए उस खाने के अंदर बरकत पैदा कर दी जाएगी। आज घरों का हाल ये है कि घर का खाना खाने के बाद पहले बच्चे ने खा लिया, बेटी आई बेटी ने खा लिया, शोहर आया शोहर ने खा लिया, हर एक ने अपना सिस्टम ऐसा बना दिया कि जो इज्तिमाइयत थी, जो इत्तेफाक था, इत्तेहाद था, जो मोहब्बत थी, सब खत्म कर दी मुसलमानों ने, और शैतान हमारे साथ में शामिल हो गया। तो ये अक़वाल ज़गी अल्लाह के रसूल के हैं। खाना एक साथ खाओ दस्तरखान पे बैठकर। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें यही तालीम दी है, और नबी अकरम ने फरमाया, अहब्बुत ताआम इलल्लाह, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा वो खाना है मा कसरत अलैहिल ऐदी, जिस खाने पे हाथ सबसे ज्यादा हो। हाथ ज्यादा कैसे होंगे? जब आदमी ज्यादा होंगे। तो घर में जितने अफराद खाना एक साथ दस्तरखान पे बैठ के खाएं, ये इस्लाम का हुक्म है हम सब के लिए। हमने उस नाम के इस जगह से कानून को भी तोड़ दिया, छोड़ दिया, तो ये मुसीबत है, उसी का नतीजा है। तो खाना खाने का जो सिस्टम इस्लाम ने हमें दिया है उसको फॉलो कीजिए, उसको अपनाइए। दूसरी चीज, आज समाज के अंदर जो बुराइयां पनप रही हैं, जो फैल रही हैं, या जो मुसीबतें हम पे आ रही हैं, हमारी ये जबान इसका नतीजा है। हर एक अपनी जबान से जो चाहता है कहता है, कोई कानून नहीं, कोई सिस्टम नहीं, इस्लाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये तमाम की तमाम अहादीस सही अंजामे के अंदर मौजूद है। अक्सर खताया इब्ने आदम फी लिसानिही, इब्ने आदम की सबसे ज्यादा खताएं, सबसे ज्यादा गलतियां उसकी जबान के अंदर हैं। ये मार पिटाई, झगड़े, फसाद, ये सब जबान का नतीजा है। ये आज आप देख लीजिए हालात क्या है। इस जगह से जबान के बलबूते पर खानदानों के अंदर दुश्मनियां हो गई, आपसी मोहब्बतें पैदा होने को तैयार नहीं है, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। तो अक्सर खता या इब्ने आदम फी लिसानिही, इंसान की अक्सर गलती खता उसकी जबान के अंदर मौजूद है। अपनी जबान का सही इस्तेमाल कीजिए। और ये कौन सिखाएगा? ये कानून जो हमारे सामने है, कुरानी कानून, अल्लाह के रसूल की हदीसें, जो दस्तूर है हमारे पास, हमें ये सिखाएंगी, ये बताएंगी। तो जबान का सही इस्तेमाल कीजिए। एक तीसरा मसला जो हमारे समाज का बहुत बड़ा रोना बन चुका है, परिवार, खासकर बाप औलाद, शादी हो गई बेटे की, बीवी आ गई, ये मेरा शोहर है, ये तेरा शोहर बाद में है, पहले किसी बाप का बेटा है वो। ये कानून भी हमने तोड़ दिया। एक बच्ची जो शादी होके ब्याह के आती है, मुझे अफसोस होता है उन माँ बाप के ऊपर जो अपनी बच्ची को ब्याह के भेजते हैं। ये नसीहत नहीं करते कि बेटी तू अब पराए घर जा रही है, जिस तरह हम तेरे माँ बाप है ऐसे उस बाप बच्चे के बेटे तेरे माँ बाप है।
जिस तरह तू हमसे मोहब्बत करती है, हमारी खिदमत करती है, ऐसे उनकी करना, तेरी मेरी मत करना। आज औरत जब घर में आती है सबसे पहले जी मेरे मियाँ का काम है, मेरा आदमी है वो, मेरे मियाँ का खाओगे तुम? अरे बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आती? पहले वो किसी बाप का बेटा है, किसी भाई का भाई है, किसी बहन का भाई है, पहले उसको उनका हक बनता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुसलमानों हमने इस्लामी कानून सब तोड़ दिए, कोई कानून ऐसा हमारे पास है नहीं कि हम कह सके कि हाँ सीना ठोक के कि हमारे पास ये इस्लामी कानून मौजूद है, हो तो बताओ मुझे। सब कानून को हम तोड़ते जा रहे हैं। तो क्या फरमाया प्यारे नबी ने, अंत व मानो का ने अभी का, तू भी, तेरी प्रॉपर्टी तेरी जायदाद भी तेरे बाप का है, तू भी अपने बाप का है, तेरी प्रॉपर्टी जायदाद भी तेरे बाप की है। आज मुसलमान मानने को तैयार है? आज मुसलमान मान रहे इस चीज को? नहीं मान रहे। ये प्रॉपर्टी मैंने कमाई है, मेरी है ये। बेशक तुमने कमाई है, लेकिन तू भी तो अपने बाप का, तो तेरी प्रॉपर्टी तेरे बाप की हो गई। आज हालत बड़े नाजुक है, लोग समझने को तैयार नहीं। तो इसलिए रिश्ता भी ऐसी जगह से क्या कीजिए जहां आपको यकीन हो कि ये बच्ची जो है दीनदार है, दीन को समझती है, और घर में आने के बाद हमारे घर को संभालेगी, बनाएगी, इस्लामी कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करेगी। एक और चीज, ये हमारा मुआशरा जो इस्लामी मुआशरा होना चाहिए था, जहां पे नरमियां होनी चाहिए थी, वहां हर इंसान के अंदर सख्ती आ चुकी है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि लोग इस्लाम की बात करते हैं, मुसलमान है ही नहीं ऐसे कि इस्लाम को मानने वाले हो। प्यारे नबी ने क्या फरमाया, मन नम युहरम रिफ्का, जिस आदमी को नरमी से महरूम कर दिया गया हो, जिसमें नरमी मौजूद ना हो, युहरम खैरकुन्नहु, उस आदमी को मुकम्मल भलाई से महरूम कर दिया गया, उसमें कोई भलाई ही मौजूद नहीं है। आज नरमियां नहीं है, सख्तियां बहुत ज्यादा हैं, तेवर बड़े खतरनाक है, जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है। एक आदमी ने मस्जिद में पेशाब कर दिया, अल्लाह के रसूल के साहबा थोड़े, नबी ने डांटा, नहीं डांटो मत उसे, पेशाब करने नहीं दो। समझाया प्यार से उसको। ये अल्लाह के रसूल के अखलाक थे, ये आपकी नरमी थी। एक यहूदी ने चादर को खींचा कस के, गर्दन के अंदर निशान पड़ गए। हजरत उमर ने तलवार खींचने मारने के लिए कहा, उमर नरमी से काम लो, इस यहूदी का मुझ पे कर्जा है, बल्कि मुझे अच्छी तरह से अदा करने को कहो। ये रसूल अरबी की नरमी थी, ये आपके अखलाक थे। कहाँ है वो सारी चीजें? आज खत्म हो चुकी। कहते हैं मुसलमान हैं हम। इसलिए मैं अक्सर खुतबों में कभी कभी कहता हूं कि किस एंगल से मुसलमान कहें आज के मुसलमानों को, मुसलमान साबित तो करें। 5 टाइम की नमाज अल्लाह ने दी थी, उन नमाजों का ना हो सका मुसलमान? जो नमाज किसी हाल में माफ नहीं, एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी, कुफ्र किया, कुफ्र के नजदीक आ गया, चारों इमामों के फतवे के मुताबिक उसको कैद कर दो कैद खाने के अंदर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद, इमाम मालिक, इमाम शाफी, कत्ल कर दो उसको। ये इमाम कह रहे, कहते कि हम तो इमाम को मानते, इमामों को नहीं मानते, अपने नफ्स को मानते हो, इमामों का तो सहारा लेते हो, झूठ बोलते हो, इमामों को नहीं मानते। इमामों को मानते तो सबसे बड़े इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 टाइम पेशानी मस्जिद में झुकनी चाहिए थी, नहीं मानते इमामों को। तो इसलिए अपने नफ्सों का मुहासबा कीजिए। एक और चीज, मुसलमान के अंदर नरमी नहीं रही और अच्छे अखलाक भी निकल गए। प्यारे नबी ने क्या फरमाया था, मिन हुस्न इस्लामिन मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, इस्लाम की खूबी तो ये है कि आदमी हर उस बात को छोड़ दे जो बेफायदा हो, जिसका कोई फायदा ना हो। आज हमारा सारा वक्त गपशप के अंदर गुजर रहा है। प्लानिंग कीजिए मुस्तकबिल की। आपके बच्चे बड़े हो गए, क्या प्लानिंग है आपके पास इनके फ्यूचर की? आप इनको क्या भविष्य देंगे, क्या फ्यूचर देंगे आप इनको? आपके पास स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटियां नहीं है आपके पास, अक्सर बता चुका हूं। और मैंने बल्कि आपको कुछ ऐसे मशवरे भी दिए थे, आप चाहें तो जितनी मजबूत आप हो सोसाइटी के अंदर, कॉलोनी के अंदर, कारोबारी पैमाने पर, पैसे के एतबार से, मजबूती के एतबार से, आप चाहो तो सब मिलकर अपने बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज आसानी से अपने एरिया के अंदर बना सकते हो, खोल सकते हो। और जो बच्चे गरीब हो उनको फ्री में पढ़ा सकते हो। मैं जानता हूं इतना पैसा है लोगों के पास, लेकिन वो दिन नहीं है कि जिस दिन से वो अपने हाथ को आगे कर सके। नहीं है वो दिन मुसलमानों के पास, वो गैरों के पास है, वो गैरों के पास है। आज गैर हमारे बच्चों को फ्री में तालीम दे रहे हैं। जितने गवर्नमेंट स्कूल में आप देखिए, बच्चों को फ्री तालीम होती है, खाना मिलता है बच्चों को वहां पर, और बाकायदा पेंशन भी मिलती है बच्चों को, चाहे वो कम ही क्यों न मिले।
आपके यहाँ पे स्कूल महंगे, फीसें महंगी, कोर्स महंगे, फना की फीस, एडमिशन फीस, उसकी भी बच्चे को पूरे साल काटा जाता है, उसके बावजूद भी चैन सुकून नहीं मिलता। कितना बड़ा फर्क है हमारे समाज के अंदर, उनके समाज के अंदर। तो इसलिए थोड़ा सा गौर व फिक्र कीजिए अपने आप पर। आप मुसलमान हैं, अल्लाह के रसूल को अपने रसूल माना है, और ये सारी तालीम नबी हमें देके गए, हमें समझा के गए हैं। आखिरी हदीस बड़ी प्यारी हदीस है अपने समाज और मुआशरे के लिए, कुरान मुकद्दस के ताल्लुक से। क्योंकि जब खुतबा बना रहा था जुमे का, तो बड़ी प्यारी हदीस मेरे सामने गुजरी। मैंने सोचा कि आज इस हदीस को इंशाअल्लाह आपके सामने रखूंगा, और बड़े फायदे की हदीस है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सर्रहु, जिस आदमी को ये बात अच्छी लगती हो, जिस आदमी को ये बात खुश कर दे कि वो अल्लाह ताला से, उसके रसूल से मोहब्बत करना चाहे, यानी मैं चाहूं कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करूं, उसके रसूल से मोहब्बत करूं, तो मुझे क्या करना चाहिए ऐसा कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए? फन यक़रा फिल मुसहफ, उसे चाहिए कुरान मजीद को कुरान के अंदर पढ़ता रहे, कुरान मजीद की तिलावत करता रहे। इसके अंदर दो बातें, इसके अंदर दो शन से आपके सामने। दो शन क्या है? एक तो ये कि आप अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, आप अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं, आप किसी कारखाने के अंदर बैठे हुए हैं, आप बिजी हैं, आपके पास वक्त नहीं है कुरान को उठाने का, अपने मोबाइल फोन के जरिए से आप कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, मस्जिद के अंदर आप बैठे हुए हैं, घर में आप बैठे हुए हैं, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कुरान मजीद को नुस्खे कुरान मजीद से देख के पढ़े। उसका फायदा ये होगा कि कुरान की अजमत, कुरान की मोहब्बत आपके सीने के अंदर बैठेगी। क्योंकि मोबाइल के अंदर कुरान को पढ़ने का मतलब, कुरान मजीद को देख के पढ़ने का मतलब आप समझ सकते हैं। जो हैबत, जो खौफ आपका कुरान मजीद को नुस्खे से पढ़ने के अंदर आएगा, वो फोन के जरिए से नहीं आएगा। जो अजमत आपकी कुरान मजीद की सीने के अंदर बैठेगी कुरान मजीद को देखकर पढ़ने के अंदर, वो फोन के जरिए से नहीं आएगी। फोन से पढ़ना जायज है, कोई शुबा नहीं इसके अंदर। बेशक आप ऑफिस के अंदर बैठे, दुकान पर बैठे, स्टोर पर बैठे, कारखाने के अंदर बैठे, आप बेशक कुरान मजीद को मोबाइल के जरिए पढ़ सकते हैं, कोई मना नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता, मना नहीं कर सकता। लेकिन हमारा कुरान मजीद, अल्लाह की मुकद्दस किताब, पाक किताब, आज ताकों में सजी हुई है, धुओं में डटी हुई है, मिट्टी डट चुकी है उसके ऊपर, घरों के अंदर भी, मसाजिद के अंदर भी। तो कोशिश ये करें जो मैं कुरान पढ़ते हैं बैठ के, उन्हें चाहिए कुरान मजीद से कुरान को देख के पढ़े। कुरान की अजमत, उसकी मोहब्बत आपके सीने के अंदर बैठेगी। हो सकता है कुरान की तिलावत करते करते आपके अंदर ये जज्बा पैदा हो कि जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो क्यों ना इसके कानून पे अमल करने की कोशिश करें। तो ये आखिरी हदीस बड़ी प्यारी हदीस है। आप चाहते हैं अल्लाह ताला से मोहब्बत करें, उसके रसूल से मोहब्बत करें, कुरान मजीद की तिलावत करें। आज मुसलमान खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, कुरान मजीद को खोल के देखने को तैयार नहीं है, पढ़ने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान मजीद को पढ़िए, ये हमारा कानून है, हमारा दस्तूर है। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इज्जत से रखे, खात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।